आज कंटिन्यू करेंगे redox reaction in one vessel. In one vessel. ओके चलो, तो उसमें एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं आज. इन एल्यूमिनियम वेसल और कप और ग्लास, कुछ भी बोल सकते हैं आपको. ओके, इन एल्यूमिनियम वेसल FeSO4 solution is kept. Then is redox reaction possible? Second thing, then which type of redox reaction is possible and what are the conclusion of the redox reaction? आपको complete करना है fast. Okay, so students, here aluminium is more reactive. So aluminium undergoes oxidation reaction and tendency of aluminium to release the 3 electrons, and then we are getting 3Al3 plus 3 electrons. Now here the positive ion of the solution, that is Fe2 plus ions, will be reduced, but it gains only 2 electrons to give the Fe solid. Whenever you are writing the total redox reaction, at that time number of electrons which are released and which are gained must be same, and for that here there are 3 electrons and here there are 2 electrons. Okay, and then 3 and 2 we will balance. How? By cross multiplication. Simple. So at that time here oxidation reaction is multiplied by 2 and the reduction reaction is multiplied by 3, so that the number of electrons will be 6, and then we can write 2Al solid plus 3 Fe2 plus aqueous will give 2Al3 plus and 3 Fe solid. Okay, and now overall reaction. In actual the solution was of FeSO4, so we will write 3 FeSO4 because we need 3 Fe2 plus, and here Al3 plus is combined with SO4 2 minus to give Al2SO4 thrice and 3 Fe solid. So this is the most basic reaction. Now in this reaction we can say that which is a reducing and which is oxidizing agent. So we can say here aluminium is getting oxidized, then it is a reducing agent. Okay, similarly FeSO4 is getting reduced, then it is an oxidizing agent. Here aluminium solid is being reduced, is being oxidized, and Fe2 plus ions are being reduced, so that at inner surface of the aluminium vessel here we are getting the copper layer. आपको inner layer पे क्या मिलेगा? Copper मिलेगा यहाँ पे, because solution is kept into the vessel. Okay, so here inner surface will be coated by Fe, because FeSO4 में से आपको Fe मिलेगा. Okay, मैं यहाँ पे conclusion से बोल रहा हूँ. Al is being oxidized, Fe2 plus is being reduced. So Al is reducing agent, Fe2 plus is an oxidizing agent. Then during the reaction the concentration of Fe2 plus ion will decrease and the concentration of Al3 plus ion will increase. Simple. Okay, and this reaction takes place. So these are the conclusion, and most important here redox reaction is possible. That's why this solution cannot be kept, cannot be stored into the aluminium vessel, because generally any solution is kept for the storage purpose, and here during the storage
of FeSO4 into the aluminium, we are getting Al2SO4 thrice instead of FeSO4. That's why whenever redox reaction is possible, at that time we can say that the particular solution cannot be kept into the particular vessel because redox reaction is occurred. This is the reason. Okay, so these are the steps, and here we can say that 2 moles of aluminium will reduce 3 moles of Fe2 plus, or 3 moles of Fe2 plus ion will oxidize 2 moles of aluminium solid. Simple. So this is our fundamental. ओके तो स्टूडेंट्स, हाँ चलो फिर अब आज स्टार्ट कर रहे हैं हम रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर. ओके चलो, रूल नंबर 1, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब रूल्स माइंड में पहले होने चाहिए. रूल नंबर 1, सो फर्स्ट रूल इज जनरली ऑक्सीडेशन नंबर. चलो पहली बार मैं पूरा लिख रहा हूं यहां पे, ऑक्सीडेशन नंबर जस्ट oxidation number of metals atoms, चलो ऐसे लिखते हैं, जनरल लिखते हैं, atoms then molecules and molecules is considered zero and टोटल ऑक्सीडेशन नंबर. अब जब भी मैं O डॉट N डॉट लिखूं मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड इज कंसिडर्ड अगेन जीरो. चलो एग्जांपल से हम ये लर्न करेंगे, तो अब आपको याद रखना है. चलो एटम्स कहां कहां पे हम लिख पाएंगे. सो वेन एवर यू सी Fe, Cu, Al, Zn, Cr, तो ये सब एटम्स हुए ना, S, P. ओके, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हम Au, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आप कंसिडर करोगे क्या, जीरो, अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो. अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में हो, चलो मॉलिक्यूल फॉर्म में कौन कौन से, तो चलो इतना तो पता होगा आपको, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स H2, Cl2, F2, Br2, I2, N2, O2, P4, S8, तो ये सब मॉलिक्यूल फॉर्म में है, तो इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर आप कंसिडर करोगे जीरो. और अगर कंपाउंड, चलो मुझे कुछ कंपाउंड्स के नाम बताओ, कुछ कंपाउंड्स के नाम बोलो, चलो आपको जो भी पता है वो अभी तक आपने पढ़ा होगा ना. यस, कंपाउंड के नेम्स बताओ. HCl, फिर FeSO4, H2SO4, फिर ZnSO4, AuCl3, NaCl, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. समझ में आ गया होगा. तो इनका आप क्या कंसिडर करोगे, बोलो सेकंड स्टेटमेंट. बट क्या, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, because compounds have more than one different or same types of atoms. 2H, 1S और 4 हो, लेकिन इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा, क्या होगा, जीरो. अगेन अगर आप एटम्स कंसिडर करते हो, या तो फिर मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हो, या तो फिर कोई कंपाउंड कंसिडर करते हो, अगेन एटम्स या तो फिर मॉलिक्यूल्स या तो फिर कंपाउंड्स, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इट इज कंसिडर्ड जीरो. अगेन टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज कंसिडर्ड
0, एटम मॉलिक्यूल्स के लिए नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर और कंपाउंड के लिए टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2, चलो सेकेंड नंबर में हम ये पढ़ेंगे कि जनरली जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं किसका, अल्कली मेटल्स का, ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इन देयर कंपाउंड्स, मतलब अल्कली मेटल्स के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज हम कंसिडर करेंगे क्या, +1। सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन देयर कंपाउंड्स, तो आपको कंसिडर करेंगे, बंद कर भाई, +2, ओके। तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होगा, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। चलो अब एग्जांपल देखते हैं इनका। तो अब आपको ये याद रखना है, ध्यान से देखना कि अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या लोगे, +1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या लोगे, +2। लेकिन कंपाउंड्स में, ओके। चलो लिथियम का कंपाउंड Li3n, LiCl, सोडियम का कंपाउंड Na3PO4, NaCl, NaBr, पोटाशियम का KMnO4, रुबिडियम का RbCl, सीजियम का CsCl, हर एक का एक एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, समझ में आ गया होगा। तो कंपाउंड के फॉर्म में जब भी ये एलिमेंट्स होते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज आपको याद रखना है, इट विल बी +1। सिमिलरली यहाँ पे ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। कैसे, BeCl2, MgSO4, CaF2, SrCl2, BaCl2 एक्सेट्रा। तो जब भी बेमक्का सरबारा होंगे तो +2, रीना के रूबिनस इसके साथ फरार, याद है ना अल्कली मेटल्स, तो इनका ऑलवेज +1। इजी। Rule number 3. So now we are starting the most important number 3, and number 3 is if you are given oxygen, so generally oxidation number of oxygen is considered -2। तो जब भी आपको ऑक्सीजन दिखे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे, -2। लेकिन इसके टोटल 3 एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड कंपाउंड्स is considered -1। और ऐसे कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, चलो लिस्ट बना देते हैं इसका। तो ऐसे कंपाउंड्स है टोटल Na2O2, H2O2, BaO2 and HO2 1-. So these compounds have oxygen atom and the oxidation number of it will be -1. Exception number 2, exception number 2 is the oxidation number
ऑफ ऑक्सीजन इन आएगा यहाँ पे, इन सुपर ऑक्साइड कंपाउंड्स। स्टूडेंट सुपर ऑक्साइड कंपाउंड्स टोटल 3 ही है। सुपर ऑक्साइड कंपाउंड्स इज कंसिडर्ड -1/2 और ये भी 3 ही है। ओनली पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ओनली these 3 elements can form सुपर ऑक्साइड। चलो अब इन, ये तो अल्कली मेटल्स है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कंसिडर करेंगे, बोलो। +1। क्यों? पता है, मैंने भी रूल बताया कि ये तो अल्कली मेटल्स है और अल्कली मेटल्स का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। 2 ऑक्सीजन है तो फिर 2x, और ये कंपाउंड ऑलवेज इट विल बी न्यूट्रल, और न्यूट्रल का चार्ज ऑलवेज 0 होगा। x को सब्जेक्ट बनाओ, 2x इक्वल्स -1, x इक्वल्स -1/2। सिमिलरली यहाँ पे 1 + 2x इक्वल्स 0, 2x equals -1 and then x equals -1/2. Third one, 1 + 2x equals 0, यही आएगा -1/2। ओके, तो ये हुआ अपना एक्सेप्शन नंबर 2। चलो अब बारी आती है एक्सेप्शन नंबर 3 की। Third exception is in oxyfluoride compounds. Oxidation number of oxygen is positive. Oxidation number is positive. ओके, चलो ऐसे 2 ही कंपाउंड्स हैं, O2F2 एंड OF2। अब फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होगा, तो यहाँ पे दोनों में ऑक्सीजन का क्या होगा, तो 2x + 2 into bracket -1 total 0, that's why 2x equals +2 and then x equals +1. Similarly another side, x + 2 into -1 total 0, x will be +2. Okay, so this is the oxidation number of oxygen and it will be positive. For O2F2 it is +1 and for OF2 it is +2. So this is our exception number 3. Next, rule number 4. So the oxidation number of hydrogen is considered +1, लेकिन कौन से कंपाउंड्स में, चलो अब ये देखते हैं। तो कौन से कंपाउंड्स में होंगे, तो हाइड्रोजन तो बराबर, चलो जनरली जब भी आपको हाइड्रोजन दिखे तो आप लिखेंगे +1, बट यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है। इन मेटल हाइड्राइड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1, और इसके एग्जांपल्स देख लो भी। सो व्हेन एवर मेटल इज अटैच्ड विथ हाइड्रोजन, the oxidation number of metal will be always positive. That's why the oxidation number of hydrogen will be negative. For example, CaH2, MgH2, LiAlH4, okay, then AlH3, then LaH3। तो इन सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑलवेज -1 होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होगा,
क्योंकि ये मेटल हाइड्राइड्स है। अब आपको ऐसा लगेगा कि भी मेटल्स कहाँ कहाँ से फाइंड आउट करें और कैसे हमें पता चले, तो इसके लिए आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो याद रखना है। सी हियर, यहां पे सिक्सैग लाइन थी याद हो तो नीचे मेटल्स होंगे, सिक्सैग लाइन पे जो होंगे वो सेमी मेटल्स मेटलॉइड्स और ऊपर नॉन मेटल, तो सिर्फ नॉन मेटल्स यहीं पे इसी पार्ट में है। बाकी ये मेटल्स, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, यहां पे एफ आएगा वो भी मेटल्स, यहां पे भी मेटल्स। तो वेन एवर hydrogen atom is added with S, D and F and sum of P block elements, then we are getting the metal hydrides और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, और वो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ओके, तो चलो, तो ये रूल नंबर 4 आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर 5, जनरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन। हाँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज कंसिडर्ड -1। अब इसमें मैं यहाँ पे एक्सेप्शन तो ले, लेकिन एक नोट लिख रहा हूं, तो नोट के हिसाब से हम जाएंगे। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज कंसिडर्ड -1, तो उसमें फर्स्ट नोट ऐसी है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये वाला नंबर। ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ClBrI is positive when they are attached with oxygen, because electronegativity of oxygen is more than these elements. Okay, that's why oxygen has always negative charge whenever it is attached with ClBr and I, and it is -2, क्योंकि ये तो रूल के हिसाब से आपने देखा ना, तीनों एक्सेप्शन में ये तो तीन थे ही नहीं। नेक्स्ट वन, तो यहां पे एक एग्जांपल देख लो, ClO2, बोलो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? देन Cl2O7, क्लोरीन का क्या होगा? देन HbRO4, इसका नाम है ऑक्सो एसिड और ये है परब्रोमिक एसिड। फिर HiO4, तो इन सब में आपको चलो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। और एक है HbRO, चलो इन सब में हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। ओके, चलो, तो फिर ClO2, तो उसमें X, ऑक्सीजन का जनरली -2, टोटल कंपाउंड का 0, तो X विल बी +4। हियर 2X, 7 into -2, total 0, so 2X will be +14 and then X will be +7. Here hydrogen +1, X, 4 times oxygen, total 0, X will be 1 and then 2 4s are -8, -7, another side +7. Hydrogen +1, iodine X, 4 oxygen, -2, total 0, X will be +7 and then finally 1 plus X -2 equals 0, +1। ओके, चलो इसका एक एक्सेप्शन बाकी है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ हेडिंग लिख देता हूं, इंटर हेलोजन कंपाउंड, इससे याद रहे कि यहां से स्टार्ट करना है। ओके, चलो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। ओके, तो फिर आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो काम दिया है, मतलब जो भी ये लिखा है रूल्स, एक बार फिर से लिख के लर्न कर दो। गुड बाय।